جو ایک مسلمان حب الوطن ہونے کے ساتھ ساتھ حب الاسلام ہونے کا جو جذبہ ہے وہ بیدار کر رہا ہے کہ ہم پوچھیں کہ جب امت مسلمہ مشکل و پریشانی میں ہو تو سجدوں میں پڑے رہنا تو عبادت نہیں ہوتی. حکومت پاکستان جہاد کا اعلان کرے, آج بھی لوگ چلے جائیں. ہم بھرپور ساتھ دیں گے بھائی, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس گھڑی میں نا مسلمانوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. فلسطین کی ساتھ ہے, ہم فلسطین میں ہماری جان بھی آئی, ہم جان بھی دیں گے فلسطین کے لیے. تو ہماری تقریباً 50% عوام جو ہے پاکستانی وہ فلسطین کی مدد کرنے کے لیے چلی جائے گی. سب سے پہلا کام تو ہماری گورنمنٹ کا بنتا ہے, ہماری حکومت کا بنتا ہے. جو ان لوگوں نے اتنی فوج کھڑی کی ہوئی ہے, اتنے ایٹم بم بنائے ہوئے, ہر قسم کی سہولت ان کے پاس موجود ہے, ٹیکنالوجی موجود ہے, ٹھیک ہے. اس کے باوجود اگر یہ کسی مسلمان کی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس ٹیکنالوجی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں انوار خان یوسف سے موجود ہوں میرا اور آپ کے کراچی میں. ناظر محترم, اس وقت ہم اپنے شہر کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, مگر ایمانی جذبہ اور اندر جو ایک مسلمان حب الوطن ہونے کے ساتھ ساتھ حب الاسلام ہونے کا جو جذبہ ہے وہ بیدار کر رہا ہے کہ ہم پوچھیں کہ جب امت مسلمہ مشکل و پریشانی میں ہو تو سجدوں میں پڑے رہنا تو عبادت نہیں ہوتی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک اور دیگر جتنی بھی پوری امت مسلمہ خاموش ہے, سوائے چند ایک آدھ ملک کے جو ہمارے غزہ میں فلسطینی بھائیوں کے لیے ساتھ دے رہے ہیں اور کوئی عملی پریکٹیکلی کوئی اپروچ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, شان بشانہ کھڑے ہو جائیں. مگر آج بھی ہم خاموش ہیں اور تمام اسلامی ممالک خاموش ہیں, پاکستان خاموش ہے, ترکی خاموش ہے, سعودیہ عربیہ خاموش ہے. مگر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کراچی کی عوام کیا بولنا چاہتی ہے, کیا کہنا چاہتی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے فلسطینیوں کے لیے. آئیں آپ کو دکھاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس وقت مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, 40 ملکوں کی فوج مسلمان, پھر اس کے علاوہ کعبے پہ حملہ ہوتا ہے تو یہاں سے مسلمانوں کی فوج جاتی ہے پاکستان کی. کیا وجہ ہے کہ ایک فلسطین غزہ جس پہ اتنا ظلم و ستم اور بربریت ہو رہی ہے اور ہمارا قبلہ اول بھی ہے, مگر کوئی پوری دنیا کے مسلمان نہیں اس کا ساتھ دے پا رہے. ایک ایران ہے جس نے صرف ایک قدم اور ہمت اور جذبہ بڑھایا ہے, مگر تمام تر مسلمان جت اسلامی ممالک خاموش ہوئے ہیں, کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا. کیوں؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں, تمام مسلمانوں کے اندر ابھی ایک جوش بھی ہے اور ایک انتقام کی ایک جو ہے نا آگ بھی لگی ہوئی ہے کہ ان یہودیوں کے خلاف جو ہے نا وہ جہاد بھی کیا جائے. جس طریقے سے یہ معصوم بچوں کو ہسپتالوں پر اور عورتوں پر جس طرح سے یہ بمباری کر رہے ہیں, تو یہ ایک ہمارے عالمی مطلب ہماری UN کو بھی دیکھنا چاہیے. جس طرح یہ مسلمانوں کو دہشت گرد فوراً سے کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ تو عالمی طور پہ بھی دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہر پاکستانی اس وقت تیار ہے. اگر اس وقت جنگ ہو گئی فلسطین کے ساتھ, آپ کیسا دیں گے, فلسطین والوں کو کیسا ساتھ دیں گے آپ؟ ہم بھرپور ساتھ دیں گے بھائی, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کس طرح سے؟ ہمت کے ساتھ. ہمت کے ساتھ کیسے؟ جوش اور جذبوں کے ساتھ. اچھا, فلسطین کا بھرپور ساتھ دیں گے. اس وقت فلسطین پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور تمام یہودی ملک اس کا ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کا. ہم مسلمانوں کو کیا ہوا, فلسطین کا ساتھ کیوں نہیں بھرپور طریقے سے دے پا رہے؟ کیونکہ وہ تو ہمارا قبلہ اول ہے اور اس کو بھی نہیں ہم بچا پا رہے. کیوں؟ ہم مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے, وہاں پہ بہت مسلمان مر رہے ہیں اور اس گھڑی میں نا مسلمانوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے اور یہودیوں کا سامنا کرنا چاہیے. جی ناظر محترم, ہمارے ساتھ کچھ ایسے بچے موجود ہیں جو کہ بہت کم سن ہیں مگر ان کے جذبے بہت بلند ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں. جی بیٹا کیسے ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. اس وقت جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی اور یہودیوں کی اور قبلہ اول بچانے کے لیے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے, کیا سمجھتے ہو, کیا جذبہ ہے تمہارے اندر؟ ہم وہیں تو نہیں جا سکتے مگر ہم اپنے جذبے سے ہم ان کی وہ تو کر سکتے ہیں, ہم اپنا جذبہ بھی دکھا سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں, ہم فلسطین میں ہماری جان بھی آئی, ہم جان بھی دیں گے فلسطین کے لیے انشاءاللہ. اور کیا نام ہے, آپ کیا کہتے ہو بیٹا, آپ کیا کہتے ہو؟ میں کیا سوچ, ہم تو فلسطین کے ساتھ ہیں, جذبے اپنی جان بھی قربان کر سکتے. جا تو نہیں سکتے, جیسے جماعت اسلامی یہاں پہ لگے ہوتے ہیں, یہ تمبو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ, یہ مانگتے ہیں جیسے فلسطین کے لیے سامان جاتا ہے. کچھ ہو بندہ اس میں حیثیت ملا ہے اپنی, اور 11 مرتبہ سورہ فیل پڑھ کے ان کے لیے دعا تو کر سکتا, ہمارا اتنا تو فرض ہے. جا تو نہیں سکتے, بچے ہیں ہم,
बस हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह उनकी मदद करे। हुकूमत पाकिस्तान जिहाद का ऐलान करे, आज भी लोग चले जाएंगे वहाँ। हुकूमत पाकिस्तान के जिहाद में आप क्या हाथ खाली हाथ जाएंगे क्या? ये है, हुकूमत पाकिस्तान जिहाद का ऐलान करे, हर आदमी जाएगा। अच्छा, ये तमाम इतने सारे ममालिक हैं, फौज बनी हुई है 40 मुल्कों की, वो भी कोई अपना अमल और अपना हिस्सा नहीं मिला ले फलस्तीन क़िबला अव्वल के लिए? सब अमेरिकन गुलाम है। अमेरिका बोलेगा तो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं जा सकता, कोई भी नहीं, हिल नहीं सकते हैं। आपका रोटी बंद कर देगा अमेरिकी गुलाम, इस वजह से कि रोटी बंद कर देगा। आपका रोटी बंद कर रोटी देगा। देने वाली जात तो परवरदिगार की। वो तो मुंह से है, अंदर से नहीं है। मुंह से लफ्ज है, अंदर से किसी का नहीं है। देखिए ना, फुटपाथ पे खुला हुआ ना, हलाल है हराम है, पूछिए उससे, बोलेगा हलाल है। हलाल तो ऐसे नहीं हो सकता है। इस वक्त मुसलमान बेयारो मददगार फ़लस्तीन में और क़िबला अव्वल हमारा दुश्मनों के कब्ज़े में, कोई साथ नहीं दे पा रहा, कोई भी मुसलमान ममालिक खामोश, सब सकूत की हुकूमत कायम सबके ज़बानों पर, क्यों नहीं साथ दे पा रहे? एक मुसलमान होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान होने के नाते तो भाई मेरी सोच ये है कि अगर कल को हमारे पे ये वक्त आए, ठीक है, अगर वो हमारी तरफ ना आए पलट के, तो हमने भी ऐसे उनको पुकारना है। सबसे पहला काम तो हमारी गवर्नमेंट का बनता है, हमारी हुकूमत का बनता है। जो इन लोगों ने इतनी फ़ौज खड़ी की हुई है, इतने एटम बम बनाए हुए हैं, हर किस्म की सहूलत इनके पास मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, ठीक है। उसके बावजूद अगर ये किसी मुसलमान की, अपने भाई की मदद नहीं कर सकते, तो इस टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो फ़ौज इन लोगों ने पाल के रखी है, जो तो इन लोगों को बच्चा जो हर साल का लेते हैं, किस चीज़ के लिए लेते हैं? इसलिए चीज़ के लिए लेते हैं कि अपने बैंक बैलेंस भरें, या अपने बाहर मुल्क में अपने बच्चों को वहाँ छोड़ा हुआ है, जो पैसे जो जहाँ पे लूट करते हैं, मुल्क को जो लूटते हैं, हमारे खून पसीना मेहनत की कमाई हमारी लेते हैं और वहाँ जमा करवा देते हैं। और जब इतना तो खुदा के लिए इतना तो करे, कम से कम हमारे लिए नहीं कर रहे, लेकिन जो मुसलमान वहाँ पे पिस रहे हैं, उन पर इतना जुल्म किया जा रहा है, उनकी मदद के लिए खुद नहीं जा सकते, कम से कम ऐलान तो करें। मेरे जैसा आम बंदा तो जा सकता है वहाँ पे ना, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ऐलान करिए कि भाई जहाद के लिए दरवाज़ा खुल गया, ऐलान कर रहे हैं, जो जाना चाहता है अपना रजिस्टर नाम कराए और उसका रास्ता खुला है। भले तुम्हारा पैसा भी नहीं चाहिए, तुम्हारा असला भी नहीं चाहिए, अल्लाह मदद करेगा, हमारी नीयत होगी, हम जाएंगे, अल्लाह इंशाल्लाह हमारे को वहाँ पहुँच के हमें अल्लाह हर चीज़ हमारे को मुयस्सर करेगा, मुहैया करेगा, अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा। बशर ये कि हमारी गवर्नमेंट ऐलान करे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कहाँ से ऐलान करेगी? ये तो इनके पीछे कुत्ते इनके हराम करा खा के इनके दिल मुर्दा हो गए, इनका ज़मीन मुर्दा हो गया, ईमान तो इनके अंदर है ही नहीं है कि ऐलान करे। इनको तो डर लगता है अगर हमने ऐसा ऐलान कर दिया तो जो है हमारे डॉलर बंद हो जाएंगे, और जो हम भीख मांगते हैं वो भी हमारे को मिलना बंद हो जाएगी। अभी कुछ वक्त पहले जो इदारा जो है कर्जा देता है हमारे मुल्क को, IMF जो कर्जा देता है, ये मांगते भीख उनसे जाके, उन्होंने मना किया साफ कि भाई जब तक आप पिछला कर्जा नहीं दोगे आपको 1 रुपया कर्जा नहीं मिलेगा। ऐसे ही था। अब उसके कुछ वक्त बाद जब इसराइल ने हमला किया फ़लस्तीन के ऊपर, सब मुल्कों ने कुछ ने आवाज़ उठाई, कुछ ने बिल्कुल नहीं उठाई। जैसे ईरान ने आवाज़ उठाई, तुर्की ने उठाई, फिर थोड़े बहुत अरब ममालिक भी उठ के आ गए। इन लोगों ने अभी तक कोई बात नहीं की। जब इन्होंने कर्जे की बात है तो उन्होंने $1 करोड़ का ऐलान कर दिया, हम आपको कर्जा दे रहे। उन्होंने क्यों किया? इसलिए क्या कि इन्होंने कुछ बोला नहीं, चलो इनको दाना डाल दे, चुप ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जब अगर खुद कुछ नहीं कर सकते, आवाम के लिए तो सोचे ना, आवाम के लिए ऐलान करें। इतने जाने वाले इंशाअल्लाह के हुक्म से हमारे पाकिस्तान में इतने मुजाहिदीन मर्द मुजाहिद हैं जो वहाँ जाके इनको जो ना निस्फ नाबूद कर दे। ये सिर्फ ऐलान करें कि भाई आप जाओ, लेकिन ये कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि उनको तो डॉलर लगे हुए, इनके आगे वडियाँ फेंकते हैं, चुप हो जाते, कुछ बोलते ही नहीं है। कश्मीर का मसला देखें आपके सामने कब से चल रहा है, उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं किया। बर्मा रोहिंग्या में कितने मुसलमानों को शहीद किया, उनको गाजर मूलियाँ की तरह काटा, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, चुप बैठे रहे। तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, ऐलान करो, आवाम जाएगी। ऐसे तंजीमें हैं, मुजाहिदीन ऐसे जो पड़े, जो मुल्क को जो आज़ाद करवा सकते हैं, वहाँ पे जाके मुसलमानों के लिए दिफा कर सकते हैं, उनको निस्फ़ नाबूद कर सकते हैं काफिरों को, लेकिन कुछ करें तो सही। तुम खुद कुछ नहीं करते, आवाम को तो छोड़ो। जो तो पीटीओ अमेरिका के सारे जो बात बोलते हैं वही होता है। अब जो हमारी फौज चाहती है वही होता है। हमारी गवर्नमेंट कौन चला रहा है? पहले तो दबी अल्फाज में हर सियासतदान आवाज़ निकालता था फौज के बारे में, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है बेहतर सब काम फौज कर रही है। इमरान नाज़ी ने बोला मैं उसकी हमायत नहीं कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। सही, बेहतर। बस फ़लस्तीन के लिए आपके अंदर जज्बा बहुत है, अगर छोड़ दिया जाए तो आप जाएंगे। इंशाल्लाह इनफरादी कुव्वत बहुत है आपके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा इम्तिहान, और तमाम 40 ममालिक, 35 से 40 ममालिक की फ़ौज
बनी हुई है उस मुसलमानों की, मगर फिर भी आज हमारा किबला अव्वल बेयारो मददगार और दुश्मनों के हाथों ज़दोकोब हो रहा है। क्यों? भाईजान हम लोग हैं अमेरिका के गुलाम, क्योंकि हमारे में इंसानियत है नहीं। इंसानियत होता आज ये फ़लस्तीन के साथ जुल्म नहीं होता। कौन है आवाज़ उठाने वाले? आप मुझे ये बताओ। हम लोग कितना कोशिश करेंगे सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपना चैनल बनाए हुए सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कौन है जो आवाज़ उठाए यार फ़लस्तीन के लिए? अब खुद देखो, हम खुद मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है। हमारा बैतुल मुक़द्दस वहाँ पे है, हमें सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन क्या है, हमारे हुक्मरान सो रहे हैं, अमेरिका के गुलाम है। भाई हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं, बाकी अल्लाह उनकी मदद करेगा। आज तुम्हारे मुसलमान भाई अजियत में, उनके साथ जुल्म और सितम हो रहा है। मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए क्या जज्बा है, क्या सोचते हो, कैसे मदद करोगे? मुसलमान के नाते हुए हम सब मुसलमान हैं, सारे मुल्क काफ़ी, और अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत भी दी है और जज्बा भी दिया हुआ है, और हर मुसलमान का फ़र्ज़ यही बनता है कि फ़लस्तीन और गज़ा का जो अभी हुआ है मसला छिड़ा हुआ है, तो ये मुसलमान सारे भाई हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, हर हाल में करनी चाहिए, यकजहती करनी चाहिए। उनके अलावा उनकी मदद भी, हेल्प भी करनी चाहिए। तो ये सबका फ़र्ज़ बनता है, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि सब भाई भाई हैं मुसलमान। हम मुसलमान बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि जी हम मुसलमान बड़े जज्बे वाले हैं, हमें तो जंग बदर का सबक मिला है, हमें तो जंग ओहद का सबक मिला है, हमें तो करबला का सबक मिला है। आज हमारे मुसलमान भाई बेयारो मददगार हैं फ़लस्तीनी, उनकी क्यों नहीं मदद कर पा रहे? आप क्या जज्बा रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और अपने जज्बा जुनून रखते हैं करने के लिए। हर वक्त हर मुसलमान तैयार है, लेकिन हम हुक्मरानों के आगे मजबूर हो जाते हैं ना। हुक्मरान स्टेप लेंगे तो हम पीछे से जाएंगे नहीं, लेकिन जब हुक्मरान स्टेप नहीं ले रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? खाली हम लोग दुआ कर सकते हैं, हम लोग तो मजबूर हैं, जा नहीं सकते। तो आप क्या समझते हैं भाई? मैं तो कहता हूँ हर इंसान जो है ना, हर मुसलमान को उनको साथ देना चाहिए फ़लस्तीन का। क्यों नहीं साथ दे पा रहे? अभी सब बैठे हुए हैं ऐसे ही। क्या वजह है, क्या नहीं है? ये हर मुसलमान, जितनी भी मुसलमान कंट्री है, सबको मिल के उनका साथ देना चाहिए। मुसलमान उनके साथ जुल्म हो रहा है। आज उम्मत मुसलमान का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि हमारा किबला अव्वल यहूदियों के कब्ज़े में है, दुश्मनों के कब्ज़े में है, और हमारे मुसलमान भाइयों को बेयारो मददगार कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है। क्यों इस वक्त साथ नहीं दे पा रही है हमारी उम्मत मुसलमान? इतने सारे इस्लामी ममालिक हैं, सिर्फ एक मुल्क ईरान उसने हामी भरी है फ़लस्तीनियों का साथ देने के लिए, बाकी तमाम यहूदी मुल्क साथ हो गए इसराइल के, मगर इस्लामी मुल्क साथ नहीं हो रहा फ़लस्तीन के। क्या समझते हैं, क्या जज्बा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात तो आजकल ऐसे चल रहे हैं कि इज्तिमाई तौर पे उम्मत मुसलमान बिखरी हुई है, जबकि कुफर यहूद व नसारा वो मिले हुए हैं और उनका आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद है। मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि कभी एक के पीछे कभी दूसरे के पीछे। यही हमारा इलाकाई माहौल और बैनुल-अक़वामी माहौल भी ऐसा ही है। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से बिखरा हुआ, सऊदीया अलग है, दूसरे अलग हैं। जब सारी उम्मत एक जगह पे नहीं होगी तो यही हाल होगा। एक इसराइल कितना सा छोटा सा मुल्क है, 50 लाख की आबादी होगी, 60 लाख की आबादी होगी, और पूरे फ़लस्तीन पे जुल्म की इंतहा कर रहा है। तो मुसलमानों का आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं है। तो कुफर एक जगह पे मिला हुआ है, मुसलमानों में मुतफर्रिक हैं, तो इसलिए तो मार खा रहे हैं। मुसलमान बिखरे हुए हैं, तो इसी वजह से मार खा रहे हैं। जब तक ये इत्तेहाद नहीं करेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, आपने जैसे देखा कि हमारे कराची के लोग जो कि अपने दिल में ईमानी जज्बा तो रखते हैं, मगर आपको काफ़ी लोग ऐसे नज़र आए जो कि खुद कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं कि किस तरीके से साथ दें अपने मुसलमान भाइयों का, और काफ़ी लोग तो ऐसे भी नज़र आए कि जो कह रहे हैं कि ये हम लोग इस तरीके से पिस चुके हैं अखलाकी तौर पे, ईमानी तौर पे, और फिर अंदर से हम ज़बान से मुसलमान हैं, बज़ाहिर मुसलमान हैं, अंदर से हमारे पास जो जज्बा होना चाहिए वो नहीं है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि यार ये तो हमारे अगर घर का मसला होता ना, हमारे मुल्क का मसला होता, तो फिर हमें महसूस होता तकलीफ़ और दर्द फ़लस्तीनी भाइयों की। और यही बताया लोगों ने और आवाम ने कराची की कि जी इस तरीके से इस वक्त हर एक को चाहे किसी भी तरीके से अपना हिस्सा मिला है, फ़लस्तीनी भाइयों के गज़ा में जो परेशान हो रहे हैं हमारे मुसलमान भाई, उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े होने चाहिए, उनके साथ लड़ना चाहिए, उनके कदम के साथ कदम मिला के आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, अब तक के लिए इतना ही। इतने आपसे फिर मुलाकात होगी एक मुनफरिद अंदाज में, एक मुनफरिद मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम।